Praise God, everyone. We are so happy to have all of you. Since this is a recorded session, it will be shared later. But yeah, we welcome all the online viewers as well. जय मसीह की सभी को। हम बहुत उत्साहित और बहुत खुश है कि आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो ये बाद में अपलोड किया जाएगा। Amen. Thank you, Jesus. Yes, just a minute. Praise God. So as these weeks we were discussing on the topic which was very powerful, that is power of the new heart. क्योंकि हम पिछले कुछ हफ्तों से इस टॉपिक पे सीख रहे थे कि नए हृदय की सामर्थ्य के बारे में सीख रहे थे, जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही सामर्थ्यशाली टॉपिक है। Amen, amen. And we covered a lot of things that Madonna sister shared with us, and it was really awesome. If you've missed those teachings, please go check the playlist because it's a real powerful truth. और हमने काफी चीज कवर कर ली जो कि मेडोना सिस्टर ने हमारे साथ शेयर की। अगर आप में से किसी ने वो मिस कर दिया है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो वचन बहुत सुंदर और बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Yes, it's all the power of the new heart, how the new heart functions, and it's amazing. ये एक नए हृदय के बारे में है कि नए हृदय में कितना सामर्थ्य है और नया हृदय कैसे काम करता है, और वो बहुत ही सुंदर है। Yes, because that new heart is our identity. As a new creation, it's our identity. क्योंकि वो जो नया हृदय है वो हमारी पहचान है। नई सृष्टि के बाद नया हृदय हमारा। Thank you, Jesus. Mona, can you hear me? हाँ हाँ, हाँ, last line थोड़ा break हुआ है. Thank you, Jesus, for perfect internet connection. Amen, amen. So, ये जो नया हृदय है, ये वो सामर्थ्य और ये हमारी पहचान है, और ये नया हृदय हमारा सामर्थ्य और हमारी पहचान है। Amen, amen. ये नया हृदय हमारा पहचान है, क्योंकि ये वो सामर्थ्यशाली दिल है जो परमेश्वर ने दिया है. Amen. I believe perfect internet connection for you, Mona. Thank you, Jesus. मुझे प्रॉब्लम आ रहा था या सच में थोड़ा सा हो रहा था, है ना? Thank you, Daddy. Okay. So yes, last week we were discussing on this very important topic which Meadow sister had highlighted on, and it was inheritance. आपकी आवाज है? Yeah, can you continue? Thank you, Jesus. No problem, Mona. Mamu, you can do it. जब तक हाँ एक बार रिपीट करना निशा। Yes, so last week we had discussed on the topic which Meadow sister was sharing, and it was a very powerful topic of inheritance. तो पिछली बार से हम सब ये हृदय पे का जो नया हृदय है उसके बारे में सीख रहे हैं, जो कि हमारी विरासत है। Amen, amen. And when it comes to inheritance, this inheritance is such a powerful truth which every son of God needs to know. और जब बात आती है विरासत की, तो ये बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली एक विषय है जो कि हमें जानना जरूरी है। Amen, amen. So that's the topic that that Holy Spirit has been sharing with me these days, and I would like to share something with you all. तो ये विषय है जो कि पवित्र आत्मा मुझसे बहुत समय से ये मुझे बता रहे हैं, जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। Yes. Let's come to Galatians chapter 4. तो आते हैं गलातियों के 4थे अध्याय पे। Yes, I think it's verse 4 to 7. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Yes, thank you, Jesus.
Perfect. Thank you, Purvi. Yeah, it says here it talks about through Jesus we are the heirs and co-heirs with Christ. तो ये जो अध्याय है वो हमें ये बताता है कि हम यीशु के साथ सहभागी हैं. Amen. Amen. So here, if we see the first verse, Galatians chapter 4, verse 1, if we see this verse, it talks about that when a child, if a child is not, you can say, is not mature, but still the child is the master of all things. हाँ, तो इस अध्याय में ये बताया गया है कि जैसे एक बच्चा है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो गया है, पर फिर भी वो विरासत उसी की है. Yes, amen, amen. So here God was talking about us. तो यहाँ पे परमेश्वर हमारे विषय में बात कर रहे हैं. Amen. If we see the verses from 4 to 7, we'll understand what God has given us. तो यहाँ पे हम चौथे वचन से देखेंगे कि हमारे विषय में ही परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं. Amen. So verse 4 says, but when the fullness of the time had come, God sent forth his son, that is Jesus, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as not servants, but as sons. हाँ, तो चौथे वचन में ये बोला गया है कि मैं कहता हूं कि उत्तराधिकारी जब तक बालक है तो चाहे सब कुछ का स्वामी वही होता है, फिर भी वह दास से अधिक कुछ नहीं रहता. वह पूरा पढ़ लिया था क्या ये? हाँ, बस 4 और 5 पढ़ा. ओके, 4th and 5. अच्छा, ठीक है. मतलब 4th वर्स ना? हाँ, 4th वर्स. किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन जीता था, ताकि वह व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सकें. आमीन. Amen, amen. So here clearly he says, the verse says that we have been adopted as sons. तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि हम बेटों की तरह, पुत्र की तरह गोद लिए गए हैं. Amen, amen. Let's come to verse 6 and 7, and it says, because you are sons. Okay, it doesn't say because you have worked, because you have labored, because you have this, because you have that. No, it clearly says, and because you are sons. चलो आगे के वचन में छठे में हम ये बताते हैं कि हमने कुछ किया है इसलिए हम पुत्र नहीं हैं, या हमने कुछ अर्जित किया है तो इसलिए हम पुत्र नहीं हैं, या हमने बहुत हमारे काम किए हैं और बहुत सेवा करी है इसलिए हम पुत्र नहीं हैं. Yes, so this is applicable for even a person who just got born again 1 hour before. ये उन सब पे लागू होता है जो कि नया जीवन प्राप्त किया है, जिन्होंने भले ही 1 घंटे पहले ही क्यों नहीं किया हो. Yes, even if it is 5 minutes before. अगर 5 मिनट पहले भी अगर उसने विश्वास किया है तो भी उसके लिए है. Amen. That's the truth. It's because और you ये are सच है. sons. It's because you are sons. That's why you've got this. ये इसलिए है क्योंकि आप पुत्र हैं, इसलिए आपको ये विरासत मिली है. Yes, last week Madonna sister had given a beautiful example of Deepa auntie and Deepa auntie's daughter Shreya. जैसे कि पिछले हफ्ते मैडोना सिस्टर ने हमें बताया, एग्जाम्पल देके, दीपा सिस्टर और उनकी बेटी का एग्जाम्पल देके हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया था. Yeah, where she shared that if there is somebody else, a third person who comes and does a lot of things and promises to help, will you give the inheritance to that person? And then Deepa auntie said no.
जहां उन्होंने ये बताया था कि हाँ, जैसे कि एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो बहुत दीपा आंटी का प्रिय है और बहुत उनकी सेवा टहल करता है या बहुत उनके लिए करता है, अपनी जो कमाई है वो भी उनको देता है, पर क्या वो उस विरासत का अधिकारी है? Yes, and she clearly said that even if Shreya, being her daughter or a son, even if she doesn't do anything, but she is going to have it because she is the blood relation. She is a daughter, a son of the family. उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे भले ही उस पुत्री ने कुछ भी नहीं किया हो वो अर्जित करने के लिए, पर क्योंकि उनका संबंध उनके लहू से है, उनका उसका रिश्ता उसके खून से है, इसलिए वो पूरी की पूरी उस विरासत की हकदार है। Amen. Amen. So, आमीन। so clearly, the verse clearly says after that, because you are sons, God has sent forth the Spirit. When it's capital S means He's confirmed His word by giving us the Holy Spirit. हाँ, जैसा कि वचन में बोला है कि ये जो हमें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, और ये बड़े शब्दों में लिखा गया है कि स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें दिया गया है। Yes, so God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. तो परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र, अपनी आत्मा के पुत्र के द्वारा हमें हमारे को वो अधिकार दिया है, जिससे कि हम उसको बहुत बहुत हक से बोल सकते हैं, अब्बा पिता। Yes, I like that word, hakse. You know, you have the right to call him daddy, father. हाँ, ये वाला जो वचन है वो बिल्कुल सही ठहरता है कि हमें हक मिला है उन्हें बोलने का कि वो मेरा बाप है। Amen. Amen. Wow. Therefore, you are no longer a slave, but a son. बट ये है, यही बोला जाता है इसमें कि आप एक गुलाम नहीं हो, आप एक सेवक नहीं हो, आप बेटे हो। Amen. Amen. And if a son, then an heir of God through Jesus. और पुत्र मतलब आप यीशु के साथ में उसकी विरासत के सहभागी हो। Amen. Amen. That's a powerful truth. That's not that Deepanti is saying this truth. It's not that Alicia is saying this. No, the clear verse says, it was verse, I think, Galatians chapter 4, verse 7. Na? Yeah. Galatians chapter 4, verse 7 says that clearly. ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, सिस्टर मेडोना ने बोला या अलीशा ने बोला या दीपा ने बोला या कोई भी आकर यहाँ पर बोलता है, पर वचन ये बोलता है कि हम उसके विरासत के सहभागी हैं यीशु में। Amen. 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 So it clearly says, therefore you're no longer a slave but a son, and if son, then you are heir of God through Christ. ये स्पष्ट रूप से ये वचन बोलता है कि आप गुलाम नहीं हो, आप यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर की विरासत के सहभागी हो। Amen. 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 Wow. Let's come to one more verse. Let's take this because we need to know that we have an inheritance. चलो इसको और पुख्ता कर लेते हैं और एक और वचन में जाते हैं। Yes. Romans chapter 8. रोमियो का अध्याय 8। Yeah. Romans chapter 8. I think it's somewhere 15, 16th verse. Yes. Okay. Perfect. Perfect. So 15th verse almost somewhere we discussed in Galatians. 16th verse. Let's discuss from 16th and 17th verse. Yes. अपन ने पहले ही 14वां और 15वां वर्ष जो है वो एक्सप्लेन हो चुका है। अपन चलते हैं 16वें वचन पे। Yes. Verse 16 says, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. तो 16वां वचन बोलता है, वह पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
Amen. Amen. Here Amen. it clearly says who's bearing witness. They are not saying you have to bear witness. You need to feel that you're a son of God. It doesn't say that. It clearly says the Spirit, means Holy Spirit says that you are a son of God. तो ये साक्षी पूरा पूरा हमारे को ये बताता है कि ये प्रमाण है उस चीज का, ये वचन पूरा प्रमाण दे रहा है कि हमारी जो साक्षी है, हमारी जो गवाही है, वो स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Amen. Amen. So whether you feel it or not, whether you are a son of God, it doesn't matter. चाहे आप महसूस करें या नहीं करें कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं हैं, आपको फील नहीं हो रहा है, पर आप परमेश्वर की संतान हैं। Amen. It clearly Amen. says Holy Spirit is bearing witness that you are a child of God. ये वचन स्वयं एक साक्षी दे रहा है, ये वचन स्वयं ये बोल रहा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक प्रूफ है, एक साक्षी है, एक प्रमाण है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Yes. Now verse number 17 says, and if children, then heirs. और वचन नंबर 17 बोलता है, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं तो हम उत्तराधिकारी हैं। Amen. See, it clearly says, and if children, then heirs. Matlab, it's like, if this, then that. ना, ये वचन ही पूरा पूरा साक्षी दे रहा है कि हम अगर बेटे हैं, हमको अगर संतान है, तो हम उसके उत्तराधिकारी भी हैं। ये स्पष्ट ये वचन बोल रहा है। Amen. Amen. So it's Amen. such a powerful truth that if children, you don't have to do anything else to get it. It clearly says, if children, then heirs. Heirs of whom? Heirs of Ambani, heirs of this, that? No, it clearly says, the verse itself says, heirs of God. और ये वचन पूरा पूरा पुख्ता प्रमाण दे रहा है कि हम उत्तराधिकारी हैं, हम बेटे हैं तो हम संतान है तो हम उत्तराधिकारी है। किसके? टाटा बिरला अंबानी के उत्तराधिकारी नहीं है हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। Amen. Heirs of God. Can you just imagine? That means the entire estate of God is yours. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जो भी परमेश्वर का है, वो आपका, जितना भी परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर का जो कुछ भी है, उस सब के हम उत्तराधिकारी हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? No, right? It's the same way like when God spoke to Abraham, he said, look to the east, look to that side, whatever you see, that land is yours. नहीं ना, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी बोला था, उत्तर में देख, दक्षिण में देख, जो भी तुझे नजर आता है वो सब तेरा है। Yeah, and I'm sure Abraham did not even like, even if he was he would have counted or measured the land, it was impossible for him to measure the land that was given to him. और कल्पना कीजिए कि अगर अब्राहम उसको गिनने भी लगता तो क्या उसके लिए संभव होता कि वो उसको, जो परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू देख, तू ये बता कि ये तेरा है, उसको शायद वो कभी भी गिन भी नहीं सकता था। Amen. Amen. Similarly, for you and for me, the inheritance that God has kept is far beyond your imagination. ऐसे ही हमारे और आपके लिए हमारी समझ से परे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है। Amen. It's Amen. far beyond your imagination, and it's far beyond you can count or think of. Thank you, Jesus. Can you hear me? Am I audible? Perfect internet connection in Jesus' name. Lari sikha tera shia khare.
यस, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अलीशा, आ रही है आवाज तो। Okay, okay. Yeah, so something that you can't even count. ऐसी चीज जो आप गिन भी नहीं सकते, Yes, that is our inheritance. वो हमारी विरासत है। Amen, amen. Okay. Actually, Holy Spirit is just reminding me of this prophetic dream that Holy Spirit had given me. पवित्र आत्मा मुझे अभी अभी ये याद दिला रहे हैं जो कि मैंने एक स्वप्न देखा था, जो भविष्य वाणी वाला स्वप्न जो मैंने देखा था, उसकी याद दिला रहे हैं। Yes. So before going to that, I just want to clear one thing. There could be some dreams which are very scary, which are where it talks about death, destruction, something like this. Okay, those dreams are it's evil. It's not from God. It's from Satan. मैं ये बताने से पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो स्वप्ने डराते हैं और जो हमें हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, जो कि हमारे अंदर बहुत उथल पुथल महसूस करवाते हैं, वो कदापि भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Yes, that is from Satan. वो शैतान की तरफ से है, because he wants to hold you back. क्योंकि वो आपको पीछे धकेलना चाहता है। And when you see those, you don't have to fear. Just get up, speak over it, and it's done. और जब भी आप ये सब चीजें देखें तो अपना अधिकार काम में लें और उसको खड़े होके उसको भगाएं। Amen. So, and when you just speak that, that's enough. You don't even have to think whether I've spoken enough or not. It's done. आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको खड़ा होके बोलना है। Yes, amen. So now, how to know what is a prophetic dream? Is firstly, in the dream, if you know your identity, if you know who you are in Christ, then that is a prophetic dream. अगर आपको ये पता करना है कि ये भविष्यवाणी का स्वप्न है या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोला अलीशा? In that dream, are you walking in your identity? हाँ, तो इस जो स्वप्न में आप अपनी पहचान में चल रहे हैं या नहीं? Yeah. So if you are walking in your identity in that dream, then definitely it is from God. अगर आप अपनी पहचान में चल रहे हैं तो 100% वो आपके लिए आपकी भविष्यवाणी है। Amen. Amen. And identity means not identity as a slave. I'm talking about identity as a son of God. पहचान मतलब ये नहीं कि एक गुलाम की या एक सेवक की पहचान, पहचान पुत्र होने की पहचान। Amen. Amen. So this dream was where suddenly I am in a huge hall, which is very, very huge. It was like a mansion that I could see. ये स्वप्न ऐसा था कि मैं एक बहुत बड़े हॉल के अंदर जा रही थी, बहुत बड़े हॉल के अंदर घूम रही थी। Yes, which was like a very big mansion. और वो एक बहुत बड़े एक मेंशन की तरह था या महल की तरह था। Yes, yes. So the very moment I entered in that hall, you know, first of all, I did not go like I was not walking and going. I just was dropped in my spirit. तो मैं जैसे ही उसके अंदर कदम रखा, तो मैं उसके अंदर ही नहीं गई, पर मैं मेरी आत्मा के अंदर उसके अंदर मैंने प्रवेश किया। Yeah, so that means I meant to say that it was effortless. I didn't have to go कि अरे बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत थक गए, you know. It was just I just got there. तो ये मेरी कोशिश नहीं थी या मैंने कुछ कोशिश नहीं करी, ये बहुत ही सरल तरीके से मैं वहां पर आत्मा में पहुंच गई। Amen, amen. The moment I entered that mansion, I saw that it was a huge, which I couldn't even see the end of it. जैसे ही मैं उस हॉल के अंदर पहुंची, तो वो क्या था, क्या अलीशा क्या बोला? वो इतना बड़ा था कि मुझे उसका खत्म कहाँ हो रहा है वो दिख नहीं रहा था। वो हाँ,
तो जैसे ही मैं पहुंची तो मेरे लिए ये था कि मतलब वो किसी तरह खत्म नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि और रास्ता है काफी बड़ा वहां पे। Yes. So I'll cut it short. Then what was there? I could see something which was antique items. Now, when I'm saying antique, I'm not talking about antique items like the world. It was much more precious than that. जैसे ही मैं वहां जाने लगी तो बहुत सारी मैंने पुरानी चीजें देखी। वो पुरानी चीजें ऐसी नहीं है जो कि संसार के लिए बहुत एंटिक है कि वो वाला है, पर आत्मिक तौर पे जो पुरानी होती है, जो अनमोल होती है, वो मैंने देखी वहां पे। Yes. I could see something very precious. Like, I can't say that it was gold or it was silver or it was jewel. I knew in my spirit that it is much more precious than all of that. मैंने उन चीजों को देखा तो वो बहुत अनमोल थे, पर ऐसा नहीं था कि सोना है या चांदी है या कुछ और है, पर उनसे भी ज्यादा वो अनमोल चीजें थी। Amen. Amen. Then I just heard in my spirit, okay, that very moment when I'm seeing those things, I heard it in my spirit that, this is yours. This was stolen by you, by the enemy. तो मैंने जैसे ही वो देखा तो मैंने आत्मा में सुना कि ये तेरा है, जो कि चुरा लिया गया था, वो यहाँ पर रखा है, वो तेरा है। Amen. And within few seconds, I heard another voice in my spirit saying, take all of that belongs to you. और दूसरे ही क्षण मैंने फिर आत्मा में सुना कि ले ले जो तेरा है। Amen. And I heard another word saying, this is the right time to take it back. और मैंने दूसरा शब्द ये सुना कि यही समय है कि तुझे उसे वापस ले लेना है। So the moment I heard all of these in my spirit, I did not hear a person speaking to me. I just heard it in my spirit. और जैसे ही मैंने उस क्षण वो सुना, जो कि आत्मा में सुनना था, ऐसे नहीं है कि कोई एक जना बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ, पर आत्मा में जैसे ही मैंने सुना, I started calculating how much time will I take to get all of this, because it was huge and there were so many things inside. और वैसे ही मैं गिनना शुरू हो गया। मैं सोचने लग गई कि मैं इतनी सारी चीजों को कि इतने से समय में कैसे लूंगी। Yes. And also to mention that when I entered that hall, I was not alone. I was with a team with me, standing with me. और जैसे मैं ये हो रहा था मेरे साथ में, तो मुझे मेरी आत्मा में लगा कि मैं अकेली नहीं खड़ी हूँ, मैं पूरी एक टीम के साथ वहां पर खड़ी हूँ। Yeah. So I even started thinking of, okay, even if all together we take all of this, how much time will it take? और मैं वैसे ही सोचने लगी कि अगर हम सब मिलके भी ये लेंगे तो भी हम वो कितना टाइम लगेगा हमें हमें ये लेने में। Yes. And before I could even think in my mind of all of this, within a fraction of seconds, I saw all of those things which were tied up, which were hanging, those precious things. I saw that on the ground next to me, near my feet. तो जैसे ही मैंने वहां पे लेना चाहा, वैसे ही मुझे वो लगा कि ये सारी की सारी मेरे कदमों के सामने आ गई है। हाँ, नहीं लगा, नहीं आ गया था। आ गया था, हाँ। जैसे ही मैंने आगे बढ़ के लेना चाहा तो वो सब का सब वो मेरे कदमों के नीचे आ गया था। Yes. So it was like effortlessly I had got all of that which I was thinking, how will I get? तो ये ऐसा ही था कि पहले मैं सोच रही थी, पर मेरी कोशिश किए बिना ही वो सारा चीजें मेरे पास आ गया। Amen. Amen. And without any efforts, we just took it and we just cleared it off like it was ours, and as per the dream. और बिना किसी कोशिश के वो सारी चीजें हमारे पास आ गई और हमारी ही थी। Amen. It was effortless. I'm telling you, it was effortless. और ये बिना किसी कोशिश के थी।
Yes, amen. When I woke up, when I woke up, thank you, Jesus. Yeah. So when I woke up, I couldn't understand this dream. I was asking Holy Spirit, and Holy Spirit was telling that you were collecting spoils, that too which is yours. It's your inheritance as a son of God. अलीशा कॉल आ गया था, सॉरी, वापस रिपीट करोगी? Okay. So when I woke up, I was asking Holy Spirit, what was the dream about? Because I couldn't understand. And then when I got up, Holy Spirit explained me that he gave me this word that you were collecting. आवाज नहीं आ रही है अलीशा, बहुत कम हो गई है, तो मुझे सुनाई नहीं दे रही है। 1 मिनट। Thank you, Jesus. मैं ये वाला लाइन मैं कितनी बार भी रिपीट कर सकती हूँ. It's so powerful because it's for all. मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है आवाज। Can you hear me now? हाँ, बहुत स्लो है, पर बहुत स्लो है। नहीं, हमको आ रही है आवाज। मे बी आपको ना लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, तो कॉल आया होगा ना, तो उसकी कॉल वजह से रिसीव हुआ करते होगा। हैं ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट। हाँ, I am just feeling like Holy Spirit is telling me, speak it again, speak it again. You need to have a reminder of it. Thank you, Jesus. मुझे बहुत कम आवाज सुनाई दे रही है अभी। No problem, no problem. मैं ये वाला लॉग आउट करके लॉग इन करो आंटी। अच्छा, ऐसा ठीक है। हाँ, ठीक है। So maybe till मैं then, कर देती हाँ चलेगा। हूँ, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ हिंदी में। तो ऐसा हुआ कि जब मैं उठी तो मेरे को नहीं समझ में आया वो ड्रीम क्या था, उसका क्या मतलब था। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी कि पवित्र आत्मा क्या मतलब है उसका। तो पवित्र आत्मा ने जब मुझे उत्तर दिया, उन्होंने यही बोला कि तू स्पॉइल्स कलेक्ट कर रही थी। स्पॉइल्स का मतलब जब जब अगर पुराने टाइम में बात करें तो जब दुश्मन मतलब लड़ाई होती थी, जब राजा लोग राज्यों के बीच में जब लड़ाई होती थी, तो जो जीतता था वो वहां पे जो भी होता था वो सब कुछ उस राजा का हो जाता था। आमेन। तो वो परमेश्वर ने मुझे बोला कि यू आर कलेक्टिंग स्पॉइल्स, और मुझे ये बताया उन्होंने कि ये तुझे विरासत में मिला है, जो तुझसे छीना गया था, जो तेरा ही था। और ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, पर ऐसे ये हर हर एक परमेश्वर के पुत्र के लिए ये विरासत मैंने रखी है। आमेन। हम आ गए वापस से। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू जीसस। हाँ दीदी। ऑसम। दीपा आंटी आपको आवाज आ रही है अभी मेरी अच्छे से? हाँ अलीशा आ रही है। एक्चुअली कॉल आ गया था, 2 बार आया है कॉल। तो हाँ, तो मैं बताती हूँ, जो मुझे अगर ऐड कर देना अगर मैंने कुछ मिस किया है तो। नहीं, मैंने मुझे ऑलरेडी हिंदी में। अच्छा, ठीक है। ओके। Perfect. Thank you, Jesus. Yes. So, so that's what God just started showing me, that this is for us, and it's not just for Alicia, but it is for every one of us, every son of God. हाँ, तो परमेश्वर मुझे ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ अलीशा के लिए नहीं था, ये सबके लिए है। जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं उन सब के लिए, एक एक के लिए है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। Amen, amen. And actually, maybe like, I don't know, when people can say this Luke chapter 15 has become so normal for us, or maybe we've read it so many times, but I can't go. I mean, I still love it. Luke chapter 15 is like, I can never get bored of this chapter because it's so beautiful. जैसे कि सब लोग बोलते हैं लूका का 15वां अध्याय की बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार हो चुका है, पर मेरे लिए हमेशा से वो बहुत उत्साहित और बहुत नया सा लगता है। Yes, because I've heard a preacher saying this, that I know the name of the parable is wrong. It shouldn't be the parable of prodigal son. The name should be something like the parable of father's love, something like this, because that's what the parable is all about. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है वो सिर्फ एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं, बहुत सारे पुत्रों की कहानी होनी चाहिए थी। ओके, एक्चुअली वो था कि वो जो पैराबल है वो प्रोडिगल सन का नाम नहीं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी की जगह शायद उसका नाम
दृष्टांत पिता के प्यार एक प्रोडिगल फादर मैंने सुना था, एक ऐसा ही मैसेज था जिसमें उन्होंने यही बोला कि प्रोडिगल, ये पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन नहीं, पैराबल ऑफ अ प्रोडिगल फादर होना चाहिए था, फादर्स, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था। amen, amen, father's love, such में, because correct, because that parable is so much full of his unconditional love. It talks about authority, it talks about power, it talks about all of that. और ये जो दृष्टांत है वो सिर्फ उसके पुत्र की कहानी नहीं बताता, वो सारी औथ जो हमारे को अधिकार दिए हैं उसकी कहानी है, वो पिता के प्यार की कहानी है, वो जो पिता ने अधिकार अपने तक नहीं रखा उसको दे दिया उसकी कहानी है। तो सिर्फ वही रह के नहीं रह जाती, ये पिता के प्रेम की कहानी है, Amen. दृष्टांत है। Yes, amen, amen. So if we just go to this chapter once and just go through it, because here again we can understand about inheritance very clearly. तो इसमें सिर्फ इतना है कि हमारे को हमारी विरासत के बारे में बताया गया है। Yes. So I think to understand inheritance, Luke chapter 15 is the best to understand that. तो विरासत के बारे में जानना मुझे लगता है लूका का 15वां अध्याय बहुत भली भांति हमें अच्छे से समझाता है कि विरासत का क्या मतलब हो सकता है। Amen, amen. Thank you, Jesus. Wow. तो ये हमें पूरी तरीके से दृष्टांत विरासत के बारे में बताता है कि हमारी विरासत क्या है। Amen, amen. So let's take this verse. There is a verse which talks about he took that part. मैंने इसको शायद हाईलाइट नहीं करा अभी के लिए। Just a minute. Luke chapter 15, लूका का 15वां अध्याय। So I'm sure everybody knows the story of it. So let's go quickly with it. Here it's a story of a father having two sons, elder and younger. So the younger son asks for half of the inheritance, half of the property, because he was not happy with the father and he wanted to live a life according to him. ओके अलीन, मैं ट्रांसलेट करूं? हाँ चलेगा। ठीक है, तो ये जो आवाज आ रहा है क्या? हाँ परफेक्ट। थैंक यू जीसस। ओके, सो ये जो चैप्टर है 15वां अध्याय, ये जो पुत्र के बारे में बताता है, ये बताता है उस पुत्र जो कि खुश नहीं था अपने पिता के घर में और जो चाहता था कि वो अपने पिता से वो विरासत या प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहता था और उसको लेके वहां से जाना चाहता। Amen, amen. So finally he asks, I'm still searching for that verse. Purvi, can you get that verse which says that he takes the portion and he goes to a far off land? तो हम वो वचन अभी ढूंढ रहे हैं जिसमें ये वो बोलता है कि वो अपने विरासत का हिस्सा लेके कहीं दूर देश चला जाता है। Amen, amen. Verse number 13. तो ये 13th वचन है। हाँ, 13वां वचन। Yes. Verse number 13 says, perfect. Yes. So finally the younger son is asking for half of the portion, and then the father finally agrees because the father is full of love. He respects the choice of the son. तो ये जो छोटा बेटा था ये अपने विरासत का हिस्सा मांगता है अपने पिता से, और जो ये पिता है वो मान जाता है क्योंकि वो अपने बेटे की जो भी उसने चुनाव किया है उसके साथ वो सहमत होता है। Amen, amen. So here is a picture of the father. The father does not enforce his will on his sons and daughters. तो ये जो ये हमें पिता के बारे में दिखाता है कि पिता अपने बच्चों पे या अपने बेटे पे अपना मर्जी थोपना नहीं चाहता है, वो उस पे अपनी मर्जी थोपता नहीं है। Yes, he gives a choice. वो उससे चुनाव देता है। Amen. So here the son just thought that he would enjoy if he goes away from the father, and that's what he did. तो ये जो बेटा है वो ऐसा सोचता है कि अगर वो अपने
पिता के घर से या अपने पिता से दूर जाएगा तो शायद वो वहां पे एंजॉय करेगा, उसको वहां पे मजा आएगा, और ऐसा ही वो करता है। Amen, amen. So verse number 13, as per his choice, what happened? And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with the prodigal living. तो ये जो 13वां वचन है वो बोलता है कि और बहुत दिन ना बीते थे कि जो छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुरकम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। Yes. So I want all of us to highlight this word far country. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ये शब्द को हाईलाइट करें जो कहता है दूर देश। Yes. So how we understand this is he's talking about he went to completely another system. तो हम ये कैसे समझते हैं कि वे जो पुत्र था वो अपने पिता के घर से निकल के एक बिल्कुल ही अनजान जगह, मतलब बिल्कुल अनजान सिस्टम में चला गया जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। Okay, so to understand system, we can take the example of how Adam and Eve did, okay, when they disobeyed God. तो ये सिस्टम के बारे में समझने के लिए हम आदम और हवा का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने कैसा किया जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करा। Yes, so Adam and Eve had a system before they could disobey. They had a system where everything was being supplied by God. God was their source for everything. So पहले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से पहले ऐसा था कि आदम और हवा एक बिल्कुल अलग सिस्टम में थे जहां पे परमेश्वर उनका सोर्स था, वो हर तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। Amen, amen. But when they disobeyed God, the entire system changed. After that, they got into the curse system of the world. तो जैसे ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया वो एक बिल्कुल अलग सिस्टम में पहुंच गए जो कि सिस्टम था जो कि श्रापित था। Yes, yes, amen. So it was like before that they were under the kingdom system. After that they went into the world system. तो ये ऐसा था कि उल्लंघन करने से पहले वो परमेश्वर के राज्य के सिस्टम में थे और उल्लंघन करने के बाद वो संसार के सिस्टम में आ गए। Yes. Now let's come back to Luke chapter 15 verse 13, which we said that the younger son went to a far distant country, a far country. तो हम वापस से लूका का 15वां अध्याय का 13वें वचन पे आते हैं जो कहता है कि जो ये बेटा था वो एक दूर देश चला गया। Yes, so that far country means a completely different system where we know what happened with him further. He was slogging. First he had some money, the money got over, and then he was slogging and working, and finally he did not have anything to eat, where he was eating the food of the pigs. तो जो हमें आगे पता है कि जब वो उस दूर देश चला जाता है उसके साथ वहां पे क्या हुआ, वहां पे उसने सारा अपना पैसा उड़ा दिया और उसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था और वो सुअरों के साथ खाना खा रहा था और बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करके जो भी कमा रहा था उसमें भी वो सुअरों के साथ खाना खा रहा था। Yes. So you're understanding it's a completely different system. First, he was under his father's system, or we can say he was under the kingdom system, but then he got into the world system, the same way like Adam went. तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो जो पुत्र था वो अपने पिता के सिस्टम में था, वो ऐसा ही था कि परमेश्वर के राज्य के सिस्टम में, और उसके बाद वो संसार के सिस्टम में जो कि कर्स सिस्टम है उसमें चला गया आदम के जैसा। Yes,
Now further, the story, then finally he realizes that it would my father's servants, they live in a better place, so why not I go and repent in front of my father and say that please keep me as a servant. हाँ, तो आगे जो हुआ वो आप सबको पता है कि बेटा ऐसा सोचता है कि जो मेरे पिता के घर पे जो नौकर है वो मुझसे ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं, उनको पास खाने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जाके अपने पिता से माफी मांगता हूँ कि वो मुझको बेटे के जैसे नहीं तो कम से कम एक सेवक के जैसे अपने पास रखे। Yes. ऐसा वो पुत्र सोच रहा था। Yes. And then further we see the father was running when he saw him from a distant place walking. The father went running and the father hugged him, kissed him, and got him. We know that expression of love of the father. और आगे हम जानते हैं कि कैसा हुआ, जैसे ही पिता ने उसे दूर से आते हुए देखा, पिता दौड़ता हुआ उसके पास गया और पिता उसको चुभने लगा, उसको गले लगाने लगा, और वो बहुत खुश हो गया अपने पुत्र को अपने पास वापस आते हुए देखकर। Yes, so this is an expression of unconditional love which we understand and it's very beautiful, but I want your attention to the following verses. That's why I'm just skipping this off, but otherwise this is amazing. तो ये जो है ये पिता का उस बेटे के लिए बिना शर्तों वाला प्रेम दिखाता है कि पिता कैसे अपने बेटे से बिना शर्तों से प्रेम करता था। पर मैं चाहती हूँ कि आप आगे के वचनों पे फोकस करें या ध्यान दें, इसलिए मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। Yes, verse number 22. Verse number 22 says, but the father, now when finally now the son is like, father, when aisa kara waisa, I've done this, I've done that, and very very clearly that the father is not even listening to what the son is saying, but the father says to his servants, bring out the best robe. Actually NKJV says bring out the best robe directly, but if we see amplified version, even if we see NLT version, it says quickly, the father said to his servants, quickly bring out the best robe. तो जो ये पुत्र था ये अपने पिता के पास जाके माफी मांगने लगा, उनसे बोलने लगा कि उसने क्या क्या गलती की, पर जो ये पिता था ये वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। और उस समय पिता इतना खुश था अपने बेटे को देख के कि वो अपने सेवकों को कहता है कि जाके उसके लिए सबसे अच्छे सबसे उत्तम वस्त्र लेकर आओ ताकि मैं अपने बच्चे को अपने बेटे को वो वस्त्र पहना सकूं। Amen, amen. So बाकी का थोड़ा मैंने मिस किया, थोड़ा लंबा हो गया था। No problem. Thank you, Jesus. So actually NKJV says directly that but the father said to his servants, bring out the best robe. But if you see the amplified version, the NLT version, NIV version, it says the father said to his servants, quickly bring out the best robe. तो जो NKJV वर्जन है वो कहता है कि सेवकों को पिता बोलता है कि जाके उसके लिए वस्त्र लेकर आओ, पर जो एम्प्लीफाइड वर्जन है या जो NLT वर्जन है वो ऐसा कहता है कि पिता अपने सेवकों को कहता है कि जल्दी से जाके मेरे पुत्र के लिए सबसे अच्छे या सबसे उत्तम वस्त्र लेकर आओ। Wow, Hindi also says Amen. the same, jaldi se uttam, jaldi. Yes. Why did the Amen. father use this word quickly? तो हिंदी में भी वही बोलते हैं जल्दी से उत्तम, बट पिता शब्द जल्दी से उसका इस्तेमाल क्यों करता है? Yes, it just shows the heart of the father. Why? Because the father wanted to cover the shame of his son. He did not like it. Why he's like this? He just wanted to cover the shame. Jaldi se, quickly. वाओ आई एम एंजॉयिंग इट सो मच कि मैं थोड़ा ट्रांसलेट बोल रही हूँ। सो यहाँ पे ये जो पिता है वो जल्दी से इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने पुत्र की जो शेम है, शेम हिंदी में आई डोंट नो, शर्म, अपने हाँ पुत्र का जो शर्म है उसको ढकना चाहता है। पिता को वो अच्छा नहीं लग रहा अपने पुत्र को उस हालात में उस शर्म से देखना, इसलिए वो बोलता है जल्दी से जाके उसके लिए उत्तम वस्त्र लेकर आओ। वाओ, थैंक यू। amen, amen. Now, even if he would have given him a
clean shirt to wear, a clean t-shirt to wear. That was enough, I think, right? तो अगर अभी इस समय पे पिता अपने पुत्र को सिर्फ एक साफ टी शर्ट या साफ शर्ट भी देता था तो अभी के लिए वो ठीक था, अभी के लिए वो चलता था. But here see the father, what is he saying? Quickly bring out the best robe. Amen. बट अभी हम यहाँ पिता को देखते हैं जो कहता है कि जल्दी से उत्तम वस्त्र लेकर आओ. वाओ. Yes. Now Hindi says vastra, but actually robe is a sign of royalty. Yes, amen. हिंदी में उत्तम वस्त्र लिखा है, पर ये जो वस्त्र के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वैसे वस्त्र है जो कि राजा लोग पहनते थे. वो एक रॉयल्टी का साइन है. वो ये सब वस्त्र सिर्फ राजा लोग पहना करते थे. Yes. Amen. So he's talking about the best robe and put on him. Now who's putting the best robe? The father is putting the best robe. Amen. So अभी वो बात कर रहा है कि जल्दी से उत्तम वस्त्र पहनाओ. तो अभी यहाँ पे कौन उस पुत्र को ये वस्त्र पहना रहा है? वो पिता है जो अपने पुत्र को ये वस्त्र पहना रहा है. Wow, thank you. Amen, amen. And we know, you and I know that this robe is the robe of righteousness. It's about his righteousness, his goodness that he has put over us. Amen, amen. So हम जानते हैं कि जो वस्त्र की या जो रोब की बात हो रही है, ये रोब परमेश्वर की धार्मिकता का रोब है जो उसने हमारे ऊपर डाल दिया है, जो उसने हमें दे दिया है. टुडे मतलब आज हम उसकी धार्मिकता है. Thank you, Jesus. So this way God is actually speaking to us and saying, I have like that verse that we spoke about. If children, then heirs. If you are a son, then this is the best robe for you. So हम ये देख रहे हैं कि पिता ये आज हमारे बारे में बोल रहा है. पिता हमको बोल रहा है, जो कि हमने वो वचन देखा कि अगर हम उसके विरासत के भागीदारी उत्तराधिकारी है तो ये जो धार्मिकता है या ये जो रोब है वो हमारे लिए है. उसकी राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता आज हमारे लिए है, जो कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं. Yes. So this is the robe of righteousness. This is the robe so that you that he's saying that you are an heir to the inheritance. Amen. So ये जो रोब है ये उसकी धार्मिकता का रोब है जो कि वो बता रहा है कि हम उसके विरासत के उत्तराधिकारी हैं. जो हमें बता रहा है कि हम उसके उत्तराधिकारी हैं, वो उस विरासत के जो परमेश्वर ने हमें दी है. Amen. Amen. Wow, so that's the inheritance that we have. Not just that, the Father, he says, put a ring on his hand. Amen. Wow. सिर्फ इतना ही नहीं, पिता उधर ही नहीं रुका. पिता आगे बोलता है कि जाओ और मेरे पुत्र के हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में एक अंगूठी डालो. Yeah. So that time, like that time, when you talk about authority is given to a signet ring. So this was not an ordinary ring. It was a ring of authority to sign the legal documents. That was the signet ring that he was talking about. So ये जो अंगूठी की जो पिता बात कर रहा है, ये अंगूठी कोई ऐसी मामूली अंगूठी नहीं है, पर ये वो अंगूठी है जो अधिकार को दिखाती है. तो जो राजा लोग यूज करते थे जब वो किसी डॉक्यूमेंट्स पे या किसी चीज पे साइन करते थे तो वो अपनी अंगूठी को छापते थे उस पे. तो ये अंगूठी अधिकार दिखाता है. Amen. Yes. It's like if there are some documents and the one who's in power, the king or his son, if they had the ring, they just had to put the seal. How when you go in a government office and you just need to wait for the seal, the moment it is sealed, the moment it is stamped, it is in law. That same way was this.
तो ये जो अंगूठी है ये ऐसे अधिकार की अंगूठी थी, तो जो राजा लोग इस्तेमाल करते थे जब भी किसी डॉक्यूमेंट को या किसी कागजात पे या किसी कोई लॉ या नियम उनको बनाना होता था, तो वो इस अंगूठी का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं कि सील लगता है या स्टैंप लगता है, और जैसे ये स्टैंप उन कागजात पे, उन डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, वो चीज एक लॉ बन जाता है, एक नियम बन जाता है। तो वो वैसी अंगूठी थी जो पिता ने अपने बेटे को दी थी। Amen, amen. Amen. Let's come to this verse where Pharaoh had given his signet ring to Joseph. It's in Genesis chapter 41. तो Genesis. हम इस वचन पे आते हैं जहाँ पे फेरो ने अपनी जो अंगूठी थी जोसेफ को दी थी। तो ये वचन है उत्पत्ति में, कौन सा वचन बोला? 41. उत्पत्ति का 41 अध्याय। हाँ, आई थिंक वर्स थोड़ा नीचे करना पूर्वी। थैंक यू सो मच पूर्वी। आई थिंक इट्स समवेयर 40 के आसपास। 40, तो हम उसका 40th वर्स देखेंगे। 42. 42, ओके। Yes. So the 42 verse says, then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. तो ये जो 42 वर्स है वो कहता है, तब फिरौन ने अपने राज्य की मोहर वाली अंगूठी यूसुफ को दे दी, और यूसुफ को एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाने को दिया। Wow, thank you, Jesus. Amen. So here it symbolizes. Now I'm sure you have read this. When Pharaoh took the signet ring and gave it to Joseph, Joseph got the authority over Egypt. तो मुझे मालूम है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब फेरो ने ये जो अंगूठी थी जोसेफ को दिया, तो जोसेफ को उस पूरे राज्य पे, इजिप्ट पे पूरा रूल करने का सामर्थ्य उस अंगूठी के साथ मिल गया। Yes. So you're understanding the importance or the authority of a signet ring. That same signet ring this father gave to the son, where we were discussing in Luke chapter 15. तो आप समझ में आ रहा है इस अंगूठी का अधिकार, कि इस अंगूठी में कितना सामर्थ्य है। तो हम यही अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे लूका का 15वां अध्याय में, जो पिता ने अपने बेटे को ये अंगूठी दिया, जो अंगूठी अधिकार की अंगूठी है। Amen. Amen. That's about the authority that he has given us. तो ये उस अथॉरिटी, उस अधिकार को दिखाता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Yes, amen. Amen. Yeah, Purvi, you can stop sharing the screen. Thank you so much. Yeah, actually, I know we are running out of time, but last 5 minutes we'll try to wind up. But I want to share this amazing testimony which I had heard of Lester Simrol. He was an amazing man of God. तो मैं ये एक टेस्टिमनी आप लोगों के साथ, एक गवाही बांटने चाहती है जो मैंने सुनी थी लेस्टर सिमरॉल के बारे में, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग परमेश्वर के दास हैं। Yes. So about this amazing man of God, Lester Simrol, he had a testimony where he was sharing that there was some, I think it was a doctor, and this doctor was crazily possessed. This doctor was into crazy superstitious magician sort of things. तो ये उस डॉक्टर के बारे में ये टेस्टिमनी बता रहे थे, जो डॉक्टर पोजेस थे। पोजेस को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जिसके ऊपर शैतान ने पूरा अधिकार जमा लिया था। थैंक यू। जिसके ऊपर शैतान ने पूरा अधिकार जमा लिया था, और वो बहुत सारे अंधविश्वास की चीजों में थे। Yes. So that was to that extent where he was doing all of those magic stuff, holding something. I don't remember the exact story, but there was like with fire, he was doing something or the other. And then finally, Lester Simrol knew, and the moment Lester Simrol saw him, Lester Simrol knew that he's crazily possessed by Satan. तो ये जो डॉक्टर थे वो इतने हद तक उस अंधविश्वास में थे कि वो कुछ
जादू टोना ऐसा सब कुछ भी करते थे। और जो ये लेस्टर सिमरॉल थे, जब उन्होंने देखा उनको, तो उनको मालूम था कि ये डॉक्टर इन सब चीजों में है, अंधविश्वास की चीजों में है। Yes. So the moment Lester Sumrall saw him, and this doctor started manifesting. तो जैसे ही लेस्टर सिम्हॉल ने उनको देखा, ये जो डॉक्टर थे, उनके अंदर से जो ये जो बुरी आत्मा थी वो प्रकट होने लग गई। Yes, and that very moment, what all drama he was doing, Lester Sumrall just saw and he knew who he is. He said, "Get out of him now in Jesus' name," and that doctor was set free there and there. वाह वाह, थैंक यू जीसस। सो ये जो डॉक्टर थे, मतलब जो इनके अंदर जो ये जो आत्मा थी जो काम कर रही थी, जो ये पोजेस थे, तो बहुत ड्रामा चल रहा था उधर। पर लेस्टर सिमरॉल को मालूम था कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है। तो उन्होंने बस उसको देख के ऐसे बोला, उस बुरी आत्मा को ऐसे बोला कि इस व्यक्ति के अंदर से निकल जा। और उसी समय वो आत्मा ने वो उस आदमी को छोड़ा और वो निकल गई, और ये जो डॉक्टर थे उनको आजादी मिल गई। Yes. So also not only he was free, set free, but that very second he started speaking in tongues. He was born again, spirit filled. वाह, थैंक यू जीसस। सिर्फ उनको आजादी नहीं मिली थी, पर उसी समय उनका एक नया जन्म हो गया था। वो नई सृष्टि बन गए थे और वो टंग्स में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने या बोलने लग गए थे। आमेन। So now Lester Sumrall writes it that after a few days of this incident, he was at his room, and when he was in his room in the night, suddenly his bed started shaking. His curtain started flying in the air. The temperature in his room was supposed to be warm as per the area, but it started turning cool. ओके, तो अभी लेस्टर सिमरॉल ये बताते हैं कि उसी इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद ही वो अपने रूम में थे, और थोड़ी ही देर में उनका जो बेड था वो हिलने लग गया। उनके रूम के जो कर्टन्स थे, जो पर्दे थे, वो अपने आप उड़ने लग गए। और वेदर के हिसाब से, जो कि कमरे का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए था, वो रूम गर्म होना चाहिए था, वो ठंडा होने लग गया। Yes. So that very moment, Lester Simrall just understood and he just said, oh, so yeah, what happened was his bed was shaking, that the bed actually came from this place to this place. ओके, तो ये जो उनका जो बेड था जो हिल रहा था, वो इतना शेक कर रहा था कि वो एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर आ गया था। So that very moment, Lester Simrall just got up and said, "Devil, I caught you. Get out of this room now in Jesus' name." आमेन। सो उसी समय जो लेस्टर सिमरॉल थे वो उठे और उसने शैतान को बोला, शैतान, मैंने तुझे जान लिया या तुझे पकड़ लिया है, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से। आमेन। So the moment he spoke this, the bed that was shaking stopped. It was normal. The curtains that were flowing in the air, that stopped. It was silent. Even the temperature that started becoming cool, it started becoming warm now. तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, वो जो बेड था जो हिल रहा था, वो हिलना बंद हो गया, और जो रूम्स के जो पर्दे थे जो अपने आप हवा में उड़ रहे थे, वो उड़ना रुक गया। और जो कमरे का जो उनका टेम्परेचर था वो भी नॉर्मल हो गया। आमेन, थैंक यू। Yes. Now everything was fine. So, but for seconds, Lester Simrall was just sitting, and then suddenly he says, "Devil, come back now." वाओ। सो अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लेस्टर सिमरॉल वो सिर्फ बैठे हुए थे और वो बोलते हैं कि शैतान, अब तू वापस आ। The moment he came back, the curtain started again moving in the air, and again the temperature became a little bit cool. तो जैसे उन्होंने ये बोला, जैसे वो शैतान वापस आया, जो कर्टन्स थे वो वापस से, जो पर्दे थे वापस से हवा में उड़ने लग गए, और जो रूम का टेम्परेचर था वो वापस से ठंडा होने लगा। Now Lester Simrall says, "Devil, you shook my bed from there to there. Bring it back on place now in the name of Jesus." वाओ।
तो सिमरौल शैतान को बोलते हैं कि तूने मेरे रूम का बेड हिलाया, तू उसे एक जगह से हिलाकर दूसरी जगह पे लाया, अभी के अभी उसे वापस अपनी जगह पे ले जा, यीशु के नाम से। That very second, the bed came back to its place and he said, now get out. तो उसी समय जैसे ही उन्होंने ये बोला, जो बेड था वो वापस अपनी जगह पे आ गया, और उन्होंने फिर उसको बोला कि अभी तू जा इधर से। Amen. Yes, and that very moment after that, it was calm and he slept off आराम से. तो उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और वो बहुत आराम से सोए। So when I Amen. heard this, I was like, this is awesome. This is purely about authority. This authority where when you talk about even in Luke, the authority that God has given us, this is the authority which we have got through the inheritance. Amen. So जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत अमेज हो गई कि ये वो अथॉरिटी है जो परमेश्वर ने हमको दी है, जिसके बारे में हम लूका में भी पढ़ते हैं कि ये हमारा अधिकार है जो हमको मिला है। Amen. 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 So this all we've not worked for, but just because we are sons, we have got all of this. We have access to everything that is God. It's ours now because of what Jesus did on the cross. वाह, थैंक यू जीसस। तो ये जो अधिकार है, इसके लिए हमने कुछ मेहनत नहीं करी, हमको ये अधिकार इसलिए मिला है क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसकी संतान हैं। तो इसलिए हम उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, और हमको ये विरासत इसलिए मिली है क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने जो हमारे लिए क्रूस पे किया है। Amen. Amen. So this is for us, like as we were discussing, that the Father gave the robe, that's the robe of righteousness, that's his identity, his goodness, that's he has given us, and it does not define of our wrongs that we have done. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो जो पिता है उसने अपने वो उस बेटे को राइचियसनेस, धार्मिकता का वस्त्र दिया, धार्मिकता का रोब दिया, उसके गुडनेस, उसकी अच्छाई का रोब दिया, जो कि हमको नहीं दर्शाता या हमारे किसी भी गलत काम को नहीं दर्शाता है, बल्कि पिता के प्रेम को, पिता की धार्मिकता को हमारे लिए दर्शाता है। Yes, amen, amen. So many a times we feel righteous when we are reading the Bible, or we are going to church, or we are talking about God. We feel righteous. Oh, I am good. But something that wrong that I did, I forget about my righteousness, right? Amen. So बहुत बार हमको हमको धार्मिक तब महसूस होता है जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, या हम चर्च जा रहे होते हैं, या परमेश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर जैसी हमसे कुछ गलती होती है, हम वो राइचियसनेस भूल जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है। Yes, but I just want to encourage you and tell you this, that the Father has put the robe of righteousness. Keep it. Don't take it off. Don't say again and again, I don't deserve it. I don't deserve it. I'm like a kachara. I am this, I'm that. No, you are a son of God. That's your identity. And that's why you have an inheritance. Amen. So मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगी, आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि पिता ने जो आपको धार्मिकता का रूप दिया है, उसको उतारिए मत, उसको अपने आप रखिए। कभी भी अपने बारे में ऐसे ना सोचे कि मैं ये डिजर्व नहीं करता या मेरे को इसका अधिकार नहीं है। ये पिता की राइचियसनेस का रूप है जो उन्होंने आपको दिया है, ये आपका अधिकार है, ये आपकी विरासत है, और आप उस विरासत के उत्तराधिकारी है। Amen. Amen. So you have not done anything to earn it. You can never do anything to earn it. You have just received it, then just receive it. So आपने इसको पाने के लिए, हमने इसको पाने के लिए कुछ नहीं किया है, हमने इसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया, हमने इसको सिर्फ परमेश्वर के द्वारा इसको पाया है। तो हमें इसको परमेश्वर के प्यार के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा इस रोब को अपने साथ, अपने ऊपर रखना है। Amen. Yes, amen, amen. There's a lot more to share, but since it's already time, we can still meditate on this, because it's something that God is speaking to me, and I just wanted to share. And I know there are many things that you will get. Please share with me. I want to learn on this. So इस पे बांटने के लिए अभी बहुत कुछ है, और मैं इस पे और बहुत कुछ बांटना चाहूंगी, पर अभी क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए हम लोग
उतना ही सीखेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इस पे ही मेडिटेट करें। और अगर आप लोग हमारे साथ इसके बारे में और कुछ बांटना चाहेंगे तो हम आपसे भी इसके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। Amen, amen. Just one last line I wanted to share is the Lord says that He has given you authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. मैं बस ये आखिरी का एक लाइन में आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि उसने शैतान की सभी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है और कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। Yes. Amen. Again, I want to say, nothing by any means will hurt you. कुछ भी चीज आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। Amen. Amen. Because I feel even divine protection is through your inheritance. Wow. Amen. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जो जो डिवाइन सुरक्षा है वो भी हमारे विरासत का हिस्सा है। Amen. Come on. Amen. So let's enjoy our inheritance every day, every hour, and keep sharing. हम हमेशा हर वक्त हम अपनी विरासत का मजा लेते रहें और इसको बांटते भी रहे दूसरों के बारे में। ये विरासत हमारे लिए है। Amen. Yes, it is for me. Let's say it's for me. ये मेरे लिए है। सभी साथ में बोले कि ये मेरे लिए है। Amen. Wow, thank you, Jesus. Come on. Yes, so let's pray and then we'll wind up. So आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। Yeah, thank you, Father, for this beautiful inheritance that you have given us, Father. थैंक यू पिता, ये एक अद्भुत विरासत के लिए, जो ये सुंदर विरासत तुमने हमें दी है उसके लिए धन्यवाद। Which I have not worked for and I can never work for. जिसके लिए मैंने कुछ भी काम नहीं किया और जिसके लिए मैं कभी भी कुछ भी काम नहीं कर सकती। Yes, Lord, you've just given that freely through your Son. आपने उसको हमें फ्रीली अपने बेटे के द्वारा दिया है। Yes, Lord. Lord, we just keep teaching us, Lord, because we don't want to miss on this, Father God. This is your will that we need to enjoy the inheritance that you have given us. पिता, हमें इसके बारे में और सिखाते रहिए, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आप चाहते हैं कि हम इस विरासत का मजा ले, क्योंकि ये विरासत आपने हमें दिया है अपने बेटे के द्वारा। Yes, Daddy. Thank you, Daddy, for making us the doers of your word, and Holy Spirit, you're going to teach us every single day, Lord. थैंक यू पिता कि आपने हमें आपके वचन का करने वाला बनाया है, और पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि आप हमें रोज सिखा रहे हैं और सिखाते रहेंगे। Yes, in Jesus' name we believe it. Amen. हम यीशु के नाम पे हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. So thank you so much, all those who are watching us online. Yeah, you can, if you have any questions, put it in the comment section. We have these meetings every Wednesday, ladies discipleship in English and Hindi. So धन्यवाद उन सभी का जो हमें देख रहे हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो ये जो लेडीज का डिसाइपलशिप की मीटिंग होती है, ये हर बुधवार Yes. हर बुधवार को होती है। Yes, 6:30, so you can join us. 6:30 बजे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। Yes, so we'll meet next week. Till then, bye bye. Praise God. तो अभी हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय मसीह। Yes, thank you, Jesus. Thank you.